partner with TCS. If you offer peanuts, you will get monkeys, right? IT, engineering, analytics, cybersecurity. You also, help companies of reducing 50% of their time into hiring. लेकिन सर बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है ना कि कौन से कीवर्ड डालने हैं, ये एआई स्क्रीनिंग होता ही कैसे है, राइट? इनको अनस्किल्ड भी कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. दैट्स रियली Yes, नाइस पर्सपेक्टिव एक्चुअली. वो भी आगे वाला भी इरिटेट हो जाता है, यार कितना कॉल कर रहा है ये. आई हैव अ बेटर ऑफर इन माई हैंड. अभी मुझे बताओ आप क्या करोगे मेरे लिए? मुझे तो इससे ज्यादा ही चाहिए. Hi everyone, I'm back again with another expert in HR. He has 10 years plus experience and he's going to speak a lot about different industry. But before that, I would like to appeal all of you to please subscribe to this channel because we are taking this initiative to contribute in helping job seekers and also making Indian job market better. तो विदाउट एनी डिलेज आज हम लोग वेलकम करते हैं मिस्टर संकेत को. और संकेत सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेके हमारे साथ आज बात करने वाले हैं. मैं जानबूझ के ज्यादा चीजें नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि उनसे ही उनका एक्सपीरियंस सुनते हैं. लेट्स गो सर. हम्म. दिस एंटायर कॉन्वर्सेशन इज गोना broadcasted on our YouTube and Right. different social media platforms. Can we please have your consent? Yes. Thank you. Thank you so much. So please, as you said, you're going to walk us through your CV, your journey. We are excited to hear you. Please go ahead, sir. Yeah. So I'm talent acquisition professional around 10 years of experience. Wow. I completed my MBA in Mhm. HR like in 2015 from Singapore Business School. So Okay. later, quickly I started my career with recruitment with staffing environment. Mm-hmm. And initially, like I worked with multiple firms, Mm-hmm. and I was partner with TCS Okay. and their BFSI clients like Wow. BNY Mellon, Barclays, Mm-hmm. Credit Suisse, then Deutsche Bank. So I have done their high volume. I supported Mm-hmm. as well as like I work on niche client complex environment. So Okay. after that, I joined Fractal Analytics, that was data analytics industry. So Mm-hmm. where I gain strong, experience on stakeholder like global as well as regional. Mm-hmm. And also I did at the campus recruitment as well from Okay. IIT and IIMs, Wow. and along with Take CDAC Institute. Mm-hmm. Right. So then, so far, like I have utilized ATS tools, Greenhouse, Correlate, Itfold, AI, Success Factor, Wow. and since July 2021, I have been working with the Voice, so where I partner closely with leadership and hiring managers, and we ensure like to close or fill the positions like in smoothly without any Okay. hurdles. So here, like I supported multiple verticals: IT, engineering, analytics, cybersecurity, some SAP roles, Mm-hmm. consultant, Mm-hmm. and majorly like we support here on diversity hiring. We promote diversity hiring, Okay. DEI, as well as veteran hiring. Some we run the programs, PWD. Okay, so So, in this, entire introduction, you have told us many different terms, और I'm sure mhm, कि बहुत सारी ऑडियंस को पता ही नहीं होगी. सो मैं थोड़े थोड़े चीज़ें सिंप्लीफाई करके आपको पूछना चाहता हूँ क्योंकि जॉब सीकर्स या जो एस्पायरिंग एचआर है उनके लिए भी ये आपके कॉन्वर्सेशन हेल्पफुल रहे. ओके. सो जैसे आपने 10 साल पहले आपकी जर्नी शुरू की और लास्ट में आपने बताया कि आप वॉइस कंपनी के साथ लीडरशिप हायरिंग में भी रोल निभा रहे हो. तो मैंने जब mhm, आपके बारे में mhm. पढ़ा था आई अंडरस्टूड दैट यू ऑल्सो हेल्प कंपनीज ऑफ रिड्यूसिंग 50% ऑफ देयर टाइम इनटू हायरिंग. तो ये कैसे किया आपने? लाइक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. लोग यहाँ पे जवाब नहीं देते, घोस्ट कर देते हैं. हाउ डिड यू डू दैट? प्लीज टेल अस. So nowadays, like we optimize the tools, ATS tools like ओके. Eightfold AI. हम्म. So in that, like system runs the screening actually, and so first we have to give the prompt to the system. हम्म. We have to calibrate that accordingly, like locations, required skill sets, right? ओके. The necessary details, and accordingly, system will scan the profile.
आपने देखा रहेगा जैसे अभी नाउ इट इज व्हाट इज हैपनिंग, एक रोल रहता है लेकिन वहां पे 400 500 एप्लीकेशंस होते हैं। हम्म। सो मैनुअल अगर हम लोग सबको अगर रीच आउट करते हैं तो वो थोड़ा सा इशू हो जाता है, तो दैट टाइम लाइक वी आर यूटिलाइजिंग टूल, राइट। ATS tool. So that is every organization adopted हम्म। and they are utilizing. तो ओके। वो क्या करता है, अगर आप जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग उसको देते हो तो दे विल स्कैन एंड ऑन दैट बेसिस लाइक दे विल प्रोवाइड द shortlisted candidates. On that ओके। basis like we advance them to for the things for the process interviews and all. ओके। बट ये ना, अभी बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं कि एटीएस क्या होता है और शॉर्टलिस्टिंग कैसे होता है थ्रू एआई। तो पहले हमें बस है ना छोटा सा शॉर्ट फॉर्म बता दीजिए, एटीएस क्या होता है। So ATS is application tracking system. हम्म। इसमें हम लोग सिस्टम यूज करते हैं, जैसे अभी आप देख रहे हो क्लाउड कुछ आए हैं राइट, हम्म। चैट जीपीटी, जेमिनाई। हम्म। सो वैसे ही अभी रिक्रूटमेंट में कुछ टूल्स आए हैं, ओके। AI टूल्स। ओके। सो ये क्या होता है, ये फ्रेंडली होता है, हम्म। ये कैंडिडेट के लिए भी, जॉब सीकर के लिए भी, और इंटरव्यू के लिए भी, राइट। राइट, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हम्म। तो ये आपका प्रॉपर रिज्यूमे एज पर द रिक्वायरमेंट हम्म। ये कैच करता है और डिस्प्ले करता है, हाईलाइट करता है। सो ओके। ऑन दैट बेसिस आपका चांसेस ज्यादा होता है शॉर्टलिस्टिंग का। लेकिन सर बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है ना कि कौन से कीवर्ड डालने हैं, ये एआई स्क्रीनिंग होता ही कैसे है, राइट। तो ये तो मुझे समझ में आ गया दैट यू आर यूजिंग डिफरेंट टूल्स टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट्स, व्हिच इज फाइन। But now, don't you think that there is a possibility that you might losing a good maybe talent if they are not able to create their CV according to the ATS? In such cases, what do you राइट, suggest? करेक्ट करेक्ट, सो आई गॉट इट, लाइक वेयर यू कमिंग फ्रॉम। Yeah. अभी 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 देखिए, जैसे अगर कोई अगर ओपन रोल है तो Hmm. फर्स्ट फर्स्ट तो हमारा थंब रूल रहेगा रेज्यूमे प्रॉपर ड्राफ्ट ड्राफ्ट करना, राइट। Right. वॉट एवर इट इज लाइक, Hmm. मान के चलिए अगर कोई डेटा इंजीनियर का प्रोफाइल है Hmm. तो ऐसे रिलेटेड जो है लाइक Hmm. डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा Hmm. विजुअलाइजेशन, Hmm. राइट, कुछ टैब्ल्यू हो गया, Hmm. टूल्स, ये सब चीज एनी हाउ कैंडिडेट इज गोइंग टू ऐड इन देयर रेज्यूमे। Okay. ठीक है, तो ये हेल्प ही होगा, अगर आपने अगर किया है, आप वो चीज डालोगे प्रोफाइल में और दैट विल गेट कैप्चर। Hmm. सिस्टम सिस्टम को हम लोग बस वही प्रॉम्प्ट देते हैं, जैसे अगर प्रोफाइल अगर है Hmm. सिमिलर कीवर्ड्स आइडली, Hmm. Hmm. जो हम लोग नौकरी या जो हम लोग जो हमारे लाइसेंस होते हैं Hmm. कैंडिडेट लाइक नौकरी रिक्रूटर, तो सेम Right. Right. कीवर्ड्स Right. हम लोग यहाँ पे भी देते हैं, हाँ। सो Okay. इन बस डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट लाइक इन Hmm. प्रॉम्प्ट, Hmm. सो एंड ऑटोमेटिकली इट विल गेट कैप्चर। Right. अगर मान के चलिए अगर आप HR प्रोफाइल से अगर हो और आप अगर डेटा इंजीनियर को अगर वहां पे अगर अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली दैट विल नॉट शॉर्टलिस्ट। तो ये Right. कंप्लीटली इररिलेवेंट रहेगा ऐसे। Right. लेकिन टू सपोर्ट द जॉब सीकर्स ऑल्सो, जो मैंने रिसर्च किया था, जो मेरे ऑब्जर्वेशन से, आई वुड लाइक टू नो ऐड इट हम्म हियर। सो जो लोग नहीं जानते कि एटीएस में हम्म एआई फ्रेंडली सीवीज कैसे बना सकते हैं या फिर कैसे वो उनका शॉर्टलिस्टिंग का चांसेस बढ़ा सकते हैं, तो मैं हमेशा लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ दैट रीड द प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन। ओके। एग्जैक्टली। गो टू हम्म चैट जीपीटी और जेमिनाई और उसको बोलना है कि आपको प्रॉम्प्ट देना है, रादर टेक आउट फ्यू इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स फ्रॉम दैट, ओके, फ्रॉम दैट जेडी, एंड यूज ऑल दोज कीवर्ड्स इन योर सीवीज। कीवर्ड्स, Okay. राइट, So रिलेटेड टू one, कीवर्ड्स, राइट। yeah, related keywords. And once you include that somewhere, okay, not like कि आपने पूरा data set ही copy किया है, but use it smartly, okay? And राइट when you do that, then apply to the company. So what happens is like when your AI screening starts the screening process, राइट the job seeker CV, which has the relevant keywords, automatically comes to you, right? ये मैं करेक्ट। बहुत सारे लोगों को अभी मैं बता रहा हूँ because many people do not know about this. So this is one part of it. But that also drives me to this thing because since you mentioned कि आप leadership के साथ closely काम कर चुके हो, तो ऑब्वियसली लीडरशिप में थोड़े से एक्सपीरियंस लोग होते हैं, सीनियर लोग होते हैं, उनके साथ बहुत बार हमारे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन भी हो सकते हैं, राइट। राइट तो कभी राइट कभी ऐसे हुआ है कि मे बी योर कंपनी और मे बी योर सीनियर्स आर लुकिंग फॉर सम डिफरेंट प्रोफाइल and you're not getting that profile, so there is a misalignment and now this is a difficult situation, right? So how do you resolve that? आप आपका तरीका क्या है, आप कैसे मैनेजमेंट को सपोर्ट करते हो और एक एक पेज पे लाते हो?
राइट। सो ये काफी जेनरिक है, ये होता ही है। जैसे हम्म। स्टेक होल्डर से अगर रिक्वायरमेंट अगर आता है, राइट, सो दे हम्म। विल गिव यू लॉन्ड्री लिस्ट ऑफ स्किल सेट्स राइट। इनिशियली। और when you go in the talent market, when so that time like it feels like a unicorn may exit or not, राइट। right? So वो यूनिकॉर्न ही लगता है, like specific if you compare with the cost, हम्म। whatever the cost it is, और जो skill sets हो गए, right? So at that time like we pull, we make the market intel, राइट, मार्केट हम्म। इंटेलिजेंस। ये क्या होता है, मार्केट इंसाइट्स होता है। ओ। इसमें कौन से या इसमें कौन से स्किल सेट्स, कितने कितना पूल अवेलेबल है मार्केट में, हम्म। वो लिस्ट आउट होता है, राइट। ओके। और कितने बजट में है, लाइक, और जो टियर सिटीज है हम्म। पैन इंडिया में, मान के चलिए पुणे, बैंगलोर, राइट, हैदराबाद। सो वो सिटी वाइज भी टैलेंट पूल जितना है टोटल, हम्म। और वर्सेस जो एक्टिव अवेलेबल है, तो हम्म। ये डेटा हम लोग प्रेजेंट करते हैं, राइट। ओके। एंड ऑन दैट बेसिस लाइक हम लोग रिकैलिब्रेट करते हैं, जैसे हायरिंग मैनेजर से ये अवेलेबल पूल है, हमको ये हिसाब से जाना पड़ेगा। जैसे अगर कॉस्ट अगर आपका अगर लो है, हम्म। राइट, सो यू विल नॉट गेट दैट राइट कैंडिडेट, राइट फिटमेंट। सो राइट। ये वैसी बात है, लाइक इफ यू ऑफर पीनट्स यू विल गेट मंकीज, राइट। सो आपको कहाँ, अगर आपको अगर टॉप नॉच अगर वो स्किल सेट्स अगर चाहिए 5-7 नॉन निगोशिएबल, हाँ। सो देन यू हैव टू रेज द सैलरी सीटीसी ब्रैकेट ब्रैकेट एज वेल। या। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो अगर ये अगर मैच अगर होता है तो हम लोग आगे जाते हैं, अदरवाइज हम लोग रिकैलिब्रेट करते हैं, और हम्म। वो हिसाब से फिर हम लोग शेयर करते हैं अवेलेबल हम्म। पूल। ओके। ओके। लेकिन ये इसमें भी है ना, मुझे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ लगता है। लाइक बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे मैनेजर्स विल नॉट अलाउ यू टू raise the bucket, raise the CTC band, and they will obviously try and force you to get someone at a lower CTCs, right? With a higher skill set. Or हम्म। now it's been now 10 years that I'm also dealing in such situations where I'm speaking to a lot of founders and the startup owners. And I always tell them that if you want to hire better and smarter than you, okay, then only it's a sure shot success for your company. नहीं तो आप ये सोचोगे कि नहीं नहीं, मेरा बजट ही 20,000 है तो मुझे 15,000 का ही करेक्ट, रिसोर्स चाहिए। तो आज 15,000 है ना, बाहर का पानी पूरी वाला भी कमा लेता है, यू नो दैट। तो ये इट हायरिंग हैपेंस। हायरिंग मैनेजर्स का ये एक्सपेक्टेशन रॉन्ग है ना, फिर ये मुझे लगता है लाइक जो रिपोर्टिंग मैनेजर होने वाला है कि मुझे मेरे टीम में ऐसे ऐसे बंदा चाहिए। राइट, राइट। फ्रॉम देयर प्रोस्पेक्टिव, लाइक दे आर एट राइट पोजीशन, ठीक है, हम्म। उनका है मुझे कम में से ज्यादा आउटपुट वाला चाहिए। हम्म। बट यहाँ पे हम लोगों का रोल एक्टिव होता है, हमको जो ट्रेडिशनल मेथड है, हम्म। अगर इफ समवन इज आस्किंग और यू आर जस्ट पासिंग द प्रोफाइल, हमको हम्म। ये ब्रेक करके एज ए टैलेंट एडवाइजर वहां पे एक्ट करना पड़ेगा। इतना अगर है, आप इतना अगर पे करोगे तो आपको यही मिलेगा मार्केट में। हम राइट। लोग अगेन जैसे मैंने मेंशन किया है, हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं या हम लोग प्रेशर में दे सकते हैं, बट अगेन वो कैंडिडेट वो भागने वाला है, वो टिकेगा नहीं, राइट। राइट। तो एब्सोल्युटली। वो बस राइट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करेगा। हम्म। एब्सोल्युटली। मैं मुझे भी जब रिक्वायरमेंट्स आते हैं और मैं एक कॉल लेता हूँ टीम के साथ, तब हम लोग पहले रिसर्च कर लेते हैं, ठीक है, कि हम्म। ये पर्टिकुलर एग्जैक्टली। एक्सपीरियंस के लिए, स्किल सेट के लिए, और ये अलग अलग कंपटीटर कंपनीज में क्या अभी सीटीसी चल रहा है, राइट। और उसके एग्जैक्टली। बाद जैसे आपने कहा मार्केटिंग, सॉरी, मार्केट इंटेलिजेंस, राइट। तो ये सब कुछ जब करेक्ट। कंप्लीट होता है, उसके बाद जब मैं क्लाइंट्स के साथ बैठता हूँ, तो मैं हमेशा उनको ये बोलता हूँ कि you are getting what it is right now, okay? एग्जैक्टली। If you do not want to stretch your budget, you hire two people then at a junior level, but you also be in a position to train them, right? You have to have, I mean, करेक्ट। you have to take some efforts on that. आपको ऐसे नहीं होगा ना कि कोई बंदा मुझे एक्सपीरियंस ही चाहिए जो आके डायरेक्टली काम शुरू कर दे, राइट। तो उसके लिए करेक्ट। आपको ज्यादा करेक्ट। पैसा देना पड़ेगा, इट्स दैट सिंपल, राइट। बट वाइल सेइंग करेक्ट। दैट, आपकी प्रोफाइल है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, और सिंस आई नो यू फॉर लाइक लॉन्गर टाइम, तो मुझे ये पता है कि आप नीश हायरिंग में तो बहुत बाद में आए हो, आपने आपकी शुरुआत की थी बल्क हायरिंग में, राइट। करेक्ट। करेक्ट। बहुत अलग अलग लैटरल लेवल पे आपने हायरिंग किया है, बहुत सारे लोगों से बात भी की है। आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट टू से दैट यू हैव सीन द डिफरेंसेस। प्री कोविड क्या था, हमारे टाइम पे क्या था, फिर प्री कोविड क्या था, कोविड में क्या था, और पोस्ट कोविड में क्या था। लेकिन अभी हमें राइट। आपका लैटरल और बल्क हायरिंग का जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में थोड़ा सुनना है। सो आपने जब शुरू किया, जैसे आपने कहा कि स्टाफिंग कंपनी से आपने शुरुआत की, राइट।
हम्म। आई थिंक रियल एस्टेट में भी आपने सर्व किया है। तो आप कौन से करेक्ट। रोल पे लोगों को हायर करते थे, आपका एक्सपीरियंस तभी कैसा था? सो व्हेन आई स्टार्टेड विथ मैजेस्टिक लैंडमार्क, तो हम्म। वहां पर जो रोल हुआ करते थे वो काफी मिक्स्ड है। जैसे ब्लू कॉलर के भी जॉब थे और वाइट कॉलर के भी थे। ओके। आर्किटेक्ट हो गए, राइट, सिविल ब्लू इंजीनियर कॉलर जो ब्लू कॉलर एस्टिमेशन, कौन ब्लू कॉलर कौन से होते हैं सर? जो साइट पे काम करते हैं लोग। लाइक लेबर्स वगैरह? यस, लेकिन पार्ट ऑफ। इनको अनस्किल्ड भी कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये शायद हमारे टर्म में बोला जाता रहेगा, बट लेकिन ट्रस्ट मी, जब मैं साइट पे जाता था और जब मैं काम करता था, हम्म। तो जो एजुकेटेड लोग हैं वो कई बार दंग रह जाते थे उन लोगों के टेक्निक देखकर। राइट। तो डेफिनेटली ये ऑन रेज्यूम वी कैन कॉल आउट दैट, बट डेफिनेटली बट व्हेन यू इंटरेक्ट और व्हेन यू क्लोजली वर्क विद ऑन द राइट। ग्राउंड लेवल, तो आपको लगेगा कि हाँ, वहां पे भी लॉजिक लगेगा, वहां पे भी कुछ ना कुछ वो टेक्निक्स लगेगा जो यस। वो लोग इनोवेट करते हैं ऑन डेली बेसिस। राइट। तो दैट्स रियली यस। नाइस पर्सपेक्टिव एक्चुअली। बट यू ऑल्सो सेड कि आप जैसे ब्लू कॉलर के साथ व्हाइट कॉलर भी करते थे, राइट? सो राइट, दैट वाज राइट। एंटायर इनटू द मैजिस्ट, सॉरी, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी? मैजेस्टिक लैंडमार्क। Majestic Landmark. So that was into राइट। real estate only, right? यस, यस। Yeah, yeah. So please go ahead. Like white collar के बारे में आप क्या बता रहे थे? या तो उसमें उसमें जैसे मिक्स प्रोफाइल हुआ करते थे। हम्म। टेक्निकल आर्किटेक्ट हो गया, हम्म। मार्केटिंग में भी दे वर डिफरेंट सेगमेंट्स। जैसे ओके। उनको मल्टीमीडिया मार्केटिंग चाहिए, ब्रांडिंग मार्केटिंग चाहिए, ओ। राइट। हाँ, सेल्स अलग चाहिए। पहले जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो सेल्स हम्म। मार्केटिंग हम लोग क्लब करते थे, एक ही प्रोफाइल है। एक ही बट होता दैट था इज, ऐसे लगता था। हाँ, बट दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। उसमें हम्म। सीआरएम का भी पार्ट आएगा। राइट। जो प्री कोई प्रोडक्ट या कोई फ्लैट बेचने के पहले का जो इनिशिएशन रहेगा वो सेल्स टीम अलग, हम्म। उसके बाद जो डील करेगा वो सेल्स एग्जीक्यूटिव अलग, राइट। और जो फ्लैट बेचने के बाद का इंटरेक्शन रहेगा वो सीआरएम वाला प्रोफाइल वो अलग। हम्म। तो ऐसे इसमें भी काफी हुआ करते थे। फिर उसके बाद होर्डिंग हो गया, ब्रांडिंग हो गया। हम्म। हम्म। तो ये भी मार्केटिंग में ही आते हैं ऐसे। और सिविल इंजीनियर हो गए, एस्टिमेशन, बिलिंग, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। हम्म। तो ऐसे वर्सटाइल रोल्स हुआ करते थे। और ओके। देन आई, yeah, and then I started my career with recruitment agencies in हम्म। IT specific if I talk अच्छा। about। तो TCS का हायरिंग भी काफी मिक्स हुआ करता था। जैसे ओके। एडमिन्स रोल, कुछ नीश रोल हो गए, हम्म। टेस्टर रोल। तो ऐसे रोल TCS में हमने क्लोज किए और वो बल्क में। ओके। ओके। दैट्स इम्प्रेसिव। लेकिन तब से लेके जहां से आपने रिक्रूटमेंट एजेंसीज में काम किया, फिर आईटी में, मैजेस्टिक लैंडमार्क में, देन वॉइस में, एक चीज बहुत कॉमन होगी, दैट इज क्रॉस ऑफर्स, राइट? तो क्रॉस ऑफर्स, राइट। एज अ एचआर आप कैसे टैकल करते हो व्हेन समवन कम्स टू यू एंड सेज दैट आई हैव अ बेटर ऑफर इन माय हैंड, अभी मुझे बताओ आप क्या करोगे मेरे लिए, मुझे तो इससे ज्यादा ही चाहिए, एंड दैट्स अ कॉमन थिंग नाउअडेज, सो हाउ डू यू एज अ राइट, एचआर राइट, राइट। टैकल दैट? ऑफर ड्रॉप आउट का सिनारियो प्रणील ऐसा है। जब इफ यू रिमेम्बर, आज से 5-7 साल पहले जब क्लाउड टेक्नोलॉजीज बूम करते थे मार्केट में, अभी हम्म। भी उसका इम्पैक्ट है, बट उस वक्त जैसे अभी एआई कर रहा है वैसे उनका काफी प्रिविलेज हुआ करता था, राइट। राइट। उस राइट। वक्त राइट। भी ड्रॉप आउट था, उसके पहले भी था, इवन अभी हम्म। एआई बूम है, एआई ट्रेंडी है, अभी भी ड्रॉप आउट का सिनारियो है। राइट। इनफैक्ट आगे भी रहेगा। अभी एआई को भी कुछ उसका भी ट्रांसफॉर्मेशन या कुछ हम्म। अपग्रेड वर्जन आएगा 4-5 साल के बाद, बट ये हम्म। ऑफर ड्रॉप आउट वाला सिनारियो तो रहेगा। तो राइट। मैं जो एम्प्लॉयमेंट के साथ हूँ, जो हम्म। एम्प्लॉयमेंट जो पॉलिसी उनका कुछ बेटर है मार्केट से, हम्म। मैं वो हाईलाइट करने का ट्राई करता हूँ। राइट। डेफिनेटली हमने पहले किया ही होता है एचआर डिस्कशन में, बट अगेन उसमें मैं थोड़ा सा और स्ट्रेस आउट देता हूँ, क्योंकि एनी या। हाउ ही विल स्पीक विथ यू ऑन कॉम्पनसेशन। अगर आपका हम्म। अगर बजट नहीं रहेगा, आप मैच नहीं कर पाओगे, और जो आपके पास बेटर रहेगा आप उसका लाइमलाइट दोगे, राइट। हम्म। और मैं डेफिनेटली उसके उसको चेज नहीं करूंगा। कोई अगर कैंडिडेट अगर लेके अगर आ रहा है ऑफर, तो उसके पीछे नहीं लगूंगा मैं कि यार मेरा ही कंपनी ज्वाइन करना चाहिए। एनी राइट। हाउ ये उसका जर्नी रहेगा। तो आई एम प्रोबेबली फ्रॉम हिज लेन्स, राइट। आई एम जस्ट प्लेइंग स्मॉल रोल। राइट। हाँ, ऑफ कोर्स मेरे ऑर्गेनाइजेशन के कंपेयर में तो मैं तो वो हॉट सीट पे ही बैठा हूँ। हम्म। तो आई विल शेयर दैट इनसाइट्स, दोज बेनिफिट्स, right, their growth part, their upcoming learning part, हम्म। and that way I try to गेट to द engage the candidate. राइट। Yes. राइट।
या बिकॉज मैंने मेरे पास्ट एक्सपीरियंस में मैंने ये भी देखा है, जब जैसे जो हम लोग बिगिनर रहते हैं, फ्रेशर राइट, जो 3-4 साल में आप हम्म बोल लो या फिर उसके पहले का पीरियड, हम्म तो हमारा ऐसे रहता है कि कैंडिडेट जाना नहीं चाहिए। हम्म तो एनी हाउ आप कुछ उसको ट्राई करते हो, या एनी हाउ मल्टीपल कॉल्स करते हो, राइट, हम्म वो भी आगे वाला भी इरिटेट हो जाता है यार, कितना कॉल कर रहा है ये। और कभी अगर प्रेशर से अगर वो ज्वाइन भी कर लेता है, उसके हम्म बाद का अगर आगे का एक्सपीरियंस उसका अच्छा नहीं रहेगा, तो अगेन हम्म वो कर्स करेगा और वो अनहैप्पी रहेगा, राइट। मेरा मेरा टास्क तो हो जाएगा, बट उसका जो लाइफ लॉन्ग जो धब्बा लगेगा एक बैड एक्सपीरियंस का, वो प्रोबेबली वो भूल नहीं पाएगा। तो फिर मैंने वहां से एक चीज करेक्ट की है मेरे प्रोफाइल में। तो मैं कभी भी उनका जो जॉब रोल, जो इन्वायरमेंट रहेगा ऑर्गेनाइजेशन का, मैं ये चीज पे ज्यादा फोकस करता हूँ। डेफिनेटली अगर मेरे पास अगर बजट रहेगा, मेरे हैंड में रहेगा, तो आई डेफिनेटली आई ट्राई टू मैच दैट, या फिर लिल हम्म बिट थोड़ा सा उससे ज्यादा। राइट बट राइट जो मेरे पास बेनिफिट्स है, मैं वो हाईलाइट ट्राई करने का करोगे ट्राई करूंगा, लाइक राइट वर्क राइट लाइफ राइट बैलेंस, राइट। कुछ अलग अपॉर्चुनिटीज, लाइक जैसे अभी हमारे यहाँ कुछ पॉलिसी है, अगर आप 1 ईयर अगर कर ले हो, तो देन यू आर एलिजिबल हम्म टू लुक मोर अपॉर्चुनिटीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा तो आईजेटी और इवन ऑर्गेनाइजेशन भी, या आईजेपी दिस इज हम्म कॉल्ड, चलो एंड या एंड इनफैक्ट ऑर्गेनाइजेशन भी प्रमोट करता है एज ए इंटरनल एम्प्लॉय। राइट Nice, nice. But to sum up that, I was saying, अभी हम्म। obviously I'm into core talent acquisition for a very long time. ये मैं हमेशा ही बोल रहा हूँ. I करेक्ट। should not say this again and again. But my experiences say that whenever I train my team and if I speak to any candidate, my experience is like I will always tell them what the company is first and the role. Okay. And then obviously salary पे बात आती है. There is no question about it. एब्सोल्युटली But करेक्ट। then when it comes to the cross offers, I would try to tell them that what if you join this company, what will happen? What if you take another opportunity, what will happen? The offer you have, right? अभी एग्जैक्टली। मेरे रिसेंटली लाइक कल का ही एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. माय स्कूल फ्रेंड कॉल्ड मी. ही आल्सो हैज 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन फार्मा. ओके. तो उसको एक पुणे के कंपनी ने अच्छी ऑफर दी है. ही इज बेस्ड आउट ऑफ मुंबई ओनली. और मुंबई में और एक कंपनी ने उसको ऑफर दिया. ठीक है, विच इज बेटर. तो ही टोल्ड मी कि प्रणील मुझे है ना जो पुणे की कंपनी है वो मैच करके भी देने के लिए रेडी है, उससे बढ़ा के भी देने के लिए रेडी है. बट द ओनली डिफरेंस हियर इज लाइक कि यहाँ पे मेरी फैमिली सेटल्ड है. तो माई फैमिली इज इंसिस्टिंग कि मुंबई से ले ले ऑफर. एंड सेकेंड इज ये जो कंपनी है मुंबई की वो स्पेसिफिकली सेट सिस्टम में है. राइट, दे हैव अ बिग नेम राइट नाउ इन द मार्केट. और जो पुणे की कंपनी वो बिल्ड कर रहा है. तो और आई मीन सेम डिपार्टमेंट ही बिल्ड कर रहे हैं. तो मैंने उसको बोला कि देख दिस इज अ रोल वर्सेस मनी वाला बैटल. ओके. आप आज उस कंपनी को मना कर दो, आपके लिए कंपनी कम नहीं, उनके लिए टैलेंट कम नहीं है. राइट. बट ये एग्जैक्टली। मार्केट छोटा होता है, नीश होता है, तो कहीं ना कहीं से आ ही जाता है. ठीक है. बट हैविंग सेड दैट यू जस्ट टेक अ पेन एंड पेपर और आपके लिए अभी क्या इंपॉर्टेंट है वो पहले लिखो, रोल है या मनी है. राइट, वेरी सिंपल. करेक्ट। उसके बाद आप आपकी सिचुएशन अलग है. इफ योर फैमिली सेज दैट नो मुंबई इज द बेस्ट फॉर यू, दैट्स फाइन. राइट. बट आपको सेटल्ड वाली एक लाइफ चाहिए या अनकंफर्ट वाली, वो आपको चूज करनी है. एंड इफ यू गो फॉर अ एग्जैक्टली। हार्ड डिसीजन, इफ यू चूज अ अनकंफर्ट रोल जहाँ पे आपको सिस्टम सेट करना है, सब कुछ करना है, मे बी आफ्टर 2 और 3 इयर्स जो नेक्स्ट वाला स्विच आपका होगा वो ऐसा होगा कि आप और दो पोजीशन आगे compete करो. राइट. फ्रॉम अ करेक्ट। प्रोडक्ट करेक्ट। मैनेजर मे बी यू विल compete फॉर अ वाइस प्रेसिडेंट लेवल. तो ये भी हो सकता है. सो हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स है, यू हैव टू काउंट दैट. बट पेन एंड पेपर इज द बेस्ट थिंग टू डू. बट नॉट ओनली एग्जैक्टली। नॉट ओनली दिस गाय. मैं यूजुअली ना फ्रेशर्स या बहुत सारे लोगों को यही बताते रहता हूँ दैट whenever it comes to making a hard decision and choosing a role, please give importance to a role. Right. And राइट राइट। by saying that, I also encourage all the people to get jobs in startups. बहुत सारे स्टार्टअप्स में आज इंडिया में अच्छा फंडिंग हो रहा है बट मैन पावर नहीं मिलता है बिकॉज पीपल वांट करेक्ट। ब्रांड. करेक्ट। राइट. Correct, 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 correct. That is there, and in fact, I have seen such kind of people, जो इनिशियल करियर में डेफिनेटली थोड़ा सा कुछ सीटीसी का या फिनेंशियल कमिटमेंट होता है, तो वो राइट. स्विच करते हैं। हम्म बट लेटर जब चीजें न्यूट्रलाइज हो जाती है उनके हम्म लिए भी, तो दे फोकस ऑन स्टेबिलिटी। हम्म और मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं, जैसे नाउ डेज, सो दे आर नॉट रनिंग बिहाइंड बिहाइंड द कॉम्पनसेशंस। हम्म सो दे वांट, ऑलरेडी मार्केट में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत टैलेंट वॉर है साइड से, और हम्म टेक्नोलॉजी और टैलेंट का भी वॉर चल रहा है, दिस यस एआई यस एंड यस ऑल, राइट। और जो
बाहर गल्फ कंट्रीज में जो चल रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट सब कुछ, इसका इम्पैक्ट हाईली क्राइसिस हुआ ही है पिछले 3-4 साल से, यस, राइट? नो डाउट। तो वो भी चीज है। तो अभी बहुत से एप्लीकेंट्स, अभी फिलहाल उनका थॉट प्रोसेस ये भी है कि हमको हम्म। ले ऑफ से वगैरह बचना है। तो हम्म। अगर डेफिनेटली हम लोग अगर ज्यादा सीटीसी या अगर वो ब्रैकेट में अगर चले जाएंगे, तो डेफिनेटली उनका नंबर पहले लग सकता है। तो ये भी कहीं ना हम्म। कहीं एक अवेयरनेस है I'm नाउअडेज। glad you said it, and even I have also done a lot of research and some observations on this. कि कुछ सालों पहले there was an investor who told me this कि प्रणील, अभी है ना मार्केट में आने वाले 5-6 सालों में लोगों के सैलरीज कम होंगे। राइट। ओके, बिकॉज एआई इज राइट। ऑलरेडी टेकिंग प्लेसेस। और अगर करेक्ट। बहुत सिंपल है, एम्प्लॉयर व्हाट ही थिंक्स लाइक कि किसी रिसोर्स को हायर करके उसको इतना पैसा देके उसका सब इमोशंस और वर्क लाइफ बैलेंस वगैरह सब कुछ संभाल के, अनसर्टेनिटी है ही, तो मैं एक मशीन ट्रेन कर देता हूँ उसके कम कॉस्ट में, राइट? तो मेरा काम तो वैसे चल ही रहा है बिकॉज बिजनेस तो मुझे करना है, बिजनेस तो बंद नहीं होगा। एंड प्रैक्टिकली सेइंग दैट इट इज ऑल्सो राइट एट देयर पॉइंट ऑफ व्यू। बट हैविंग सेड दैट, जो अभी लोगों की एक्सपेक्टेशंस है मार्केट में वो ऑब्वियसली थोड़े से कम होंगे, राइट? एंड अनदर राइट। पार्ट टू इट इज लाइक जो लोग के ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिमांड है सीटीसी को लेके, उनके भी चांसेस ज्यादा ले ऑफ होने के पहले ही रहेंगे। एज यू सेड कि amazon के भी राइट। बहुत लाइक 15-18 ईयर्स amazon में सर्व किए हुए लोग हैं, गूगल में सर्व किए हुए लोग एब्सोल्युटली। हैं, दे एब्सोल्युटली। हैव बीन लेड ऑफ इवन फर्स्ट। माइक्रोसॉफ्ट। करेक्ट। या करेक्ट। करेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट में भी चल रहा करेक्ट। है। करेक्ट। सो आई थिंक ये लोगों करेक्ट। को जानना बहुत जरूरी है, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। करेक्ट। बट सर, आपने ना एक एक चीज बोली थी आपके इंट्रोडक्शन में, डीईआई। ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है। और आपने मुझे बताया था भी ऑफलाइन एक बार कि आपका फेब्रुआरी मंथ बहुत ज्यादा डीईआई राइट। हायरिंग पे बेस्ड होता है। हम लोग प्रमोट करते हैं डाइवर्सिटी। यस। एग्जैक्टली यस। तो एग्जैक्टली मुझे करेक्ट। बताइए ना कि डीईआई हायरिंग होता क्या है और आप लोग कैसे प्रमोट करते हो? ओके। या। सो इट्स बेसिकली डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन। हम्म। जो करंट ऑर्गेनाइजेशन है मेरा, वो दे आर मोर इनटू इट। दे ओके। प्रमोट ऑन इक्वालिटी एंड दिस थिंग। हम्म। सो हम लोगों का कुछ पोर्शन भी होता है जो हम हम्म। लोग सर्टेन जो पोर्शन है वो हम्म। डाइवर्सिटी या ये जेंडर, इस पे हम लोग रखते हैं रिजर्व। हम्म। एंड एज ए वुमेन्स डे हम्म। हम लोग वो सेलिब्रेट करते हैं एंटायर मंथ प्री। जैसे फेब्रुवरी हो गया या फिर मिड फेब्रुवरी, फिर मिड मार्च, ऐसे वो एक हम्म। 30 डेज या 30-35 डेज हम लोग उस वक्त ज्यादा प्रमोट करते हैं डाइवर्सिटी का। हम्म। हायरिंग करना या फिर इंटरव्यूज वगैरह सेटअप करना। सो इसमें हम लोग ऐसे लोगों को भी हम लोग स्पेशली टारगेट करते हैं जो रिकनेक्ट केसेस है। मतलब मान के चलिए कि कुछ मैटरनिटी या फिर कुछ और पर्सनल रीजन से दे आर नो लॉन्गर वर्किंग। ओके। और जो अभी ब्रेक है, जिनका ब्रेक हो चुका है, जैसे 1-2 साल से वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, या कुछ 4 साल मैटरनिटी वगैरह हो ब्रेक गया। वगैरह। मैटरनिटी वन ऑफ देम, और भी कुछ पर्सनल, ओके, कुछ अंडरस्टूड। हाँ हाँ, वी कुछ कांट और से दैट, पर्सनल या अगर या है। राइट। 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 तो ऐसे लोगों को एक्सपोजर नहीं मिलता है। अगर आप इंडस्ट्री में अगर एक्टिव हो, अगर आप 6 महीने भी अगर सिस्टम से अगर बाहर रहोगे, तो राइट। बहुत सी कंपनियां हिचकिचाएगी आपको आपको जॉब कांटेक्ट देने में, करने के लिए। यस यस। हाँ हाँ, ये एक्चुअली काफी होता है इंडस्ट्री में। हम्म। तो उस वक्त हम लोग ये ऐसे जो केसेस होते हैं उनको टारगेट करते हैं और हम्म। उनको हम लोग प्रमोट करते हैं कि थोड़ा सा अगर लर्निंग वगैरह अगर कुछ दिया जाए या थोड़ा सा अपस्किल अगर किया जाए, राइट। तो इफ दे आर, हाँ ऐसे। सो ये प्रोग्राम्स हम लोग यूजुअली रन करते हैं और यहाँ पे होता भी है। राइट। सो अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा ना धुरंधर मूवी में कि घायल है इसीलिए ज्यादा घातक है, और मैं इस पे बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ क्योंकि ये जो लोग हैं जिनको 3-4 साल से कुछ नहीं मिल रहा है, करेक्ट। या मैटरनिटी ब्रेक वाले भी जो रिस्पेक्टेड फीमेल्स हैं, केसेस है। दे दे राइट। दे हैव टैलेंट और उनको है ना वो टैलेंट दिखाना है। इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, उनको अच्छा काम करना होता है, करेक्ट। राइट? तो फ्रस्ट्रेशन बहुत बिल्ड होता है उनपे। और अगर ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाए ना, तो ऑब्वियसली आई मीन दे विल डू वंडर्स फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज पहला तो वही हो जाता है दैट दे आर सो एब्सोल्युटली। हैप्पी टू हैव समथिंग नाउ। जो ऐसे केसेस से निकलते हैं, उन हम्म। लोगों को ज्यादा अहमियत रहती है, लाइक एग्जैक्टली। टू गेट द जॉब एंड टू टू बी इन देयर। सो वो अपना 100% ऑन डेली बेसिस वो देंगे ही देंगे उस पे। राइट। एब्सोल्युटली राइट। करेक्ट। लेकिन अभी करेक्ट। दिस इज कमेंडेबल कि आप है ना बहुत अलग अलग रोल्स में डीआई हायरिंग कर रहे हो, नीश हायरिंग कर रहे हो, बल्क हायरिंग आपने कर लिया है। लेकिन पूरे आई मीन मे बी लास्ट 5 या 6 साल में ज्यादा होगा जब आप
नीश पोजीशंस पे ज्यादा आए हो, तो नीश पोजीशंस के स्किल सेट भी जल्दी मिलते नहीं है, राइट? और कभी कभी करेक्ट। द टैट इज मे बी 90 days प्लस, या कभी कभी 120 days से ही रोल ओपन हम्म। होता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप राइट। कैसे डील करते हो? लाइक हाउ डू यू यू नो मैनेज द स्टेक होल्डर्स, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर देन। वेल कॉल आउट, लेकिन कई बार ऐसा होता है जो रिक्विजिशन है ये एजिंग होकर ही हमारे पास आता है। हम्म। जैसे मान के चलिए आफ्टर पोस्ट 3 मंथ्स हम्म। इंटरनली वो लोग देख रहे होते हैं, बट इवेंचुअली नहीं क्लोज होता है, तो फिर हम्म। एक्सटर्नल मार्केट में वो ओपन होता है। सो और एनी हाउ ऐसे जो केसेस है वो फटने वाले होते हैं, क्योंकि एब्सोल्युटली। वो काउंट नहीं होगा कि आपके पास कब आएगा, वो काउंट ये होगा कि इट्स बिन 180 days और नियर बाय 200 और स्टिल इट इज ओपन इन द मार्केट। या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब आता है हम लोग तब से कैप्चर करते हैं फॉर हम्म। जस्ट फॉर रिकॉर्ड, राइट? एंड एग्रेसिवली वी रन द कैंपेन। हम्म। इंटरनल हो गया, रेफरल हो गया, राइट? उसके बाद एजेंसीज। हाँ, एजेंसीज, वेंडर्स, एजेंसीज ऑफ कोर्स। हम्म। फिर उसके बाद हमारा भी एक्टिव और पैसिव हायरिंग रहता ही है। हम्म। हमारा एक्टिव रहता है उस वक्त। तो उस वक्त हम लोग दोबारा रिकैलिब्रेट करते हैं, अगर हाँ। इफ इट इज ओपन राइट फॉर 90 days। सो हम्म। व्हाट्स द चैलेंज? ये बहुत ज्यादा प्रोफाइल चैलेंजिंग है, या फिर स्टेक होल्डर के साइड से इंटरव्यू काफी लेंदी हो रहा है, या हम्म। कुछ तो जो गैप है वो रीजन। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। राइट राइट यस, राइट। एंड ऑन दैट बेस एक बार अगर रूट कॉज अगर पता चल गया, तो देन वी हैव टू एक्ट ऑन दैट। हम्म। स्किल सेट्स में थोड़ा सा कुछ बफर करना पड़ेगा। राइट। वेदर प्रोबेबली इफ यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर लेंस, राइट? सो ये करेक्ट नहीं है, मार्केट में ऐसा है ही नहीं जो हम्म। यूनिकॉर्न मे और मे नॉट एग्जिस्ट, राइट? सो एब्सोल्युटली। दैट theory, हाँ, दैट theory, सो यू हैव टू बी रियलिस्टिक एट दैट टाइम। सो हम्म। एज ए टैलेंट एडवाइजर, सो उस वक्त हमको स्टेक होल्डर का भी माइंडसेट क्लियर करना होता है। हम्म। विद डेटा इंसाइट्स बोलिए, या फिर आप उनको बड़ी सोर्सिंग में भी इंक्लूड कर सकते हो, आप उनको लाइव भी दिखा सकते हो मार्केट। एंड राइट। ऑन दैट बेसिस लाइक हम लोग रिकैलिब्रेट कर कर हम्म। नया जेडी बनाते हैं, और एंड हम्म। दॉट बेसिस हम वापस लोग हायरिंग फिर शुरू वो होगा। रोल। यस 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 यस। बिकॉज ये फिर ऐसा पार्ट है जो कि कभी क्लोज ही नहीं होने वाला है। अनएंडिंग लूप हो जाता है फिर वो, राइट। यस यस यस, और इट हैपेंस इन द मार्केट, इट हैपेंस। स्टेक होल्डर का भी कई टाइम्स उनका भी गलती नहीं होता है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट या जो कस्टमर से आ रहा है, एनी हम्म। हाउ उनको वो डिलीवर करना है। करना ही है। और डिलीवर कैसे करेंगे? यही रिसोर्स से ही। सो एब्सोल्युटली। और समटाइम्स लाइक टाइम का भी इशू होता है, लाइक इतना सफिशिएंट टाइम वो लोग दे नहीं पाते ट्रेनिंग हम्म। और वो सब चीज में। सो दे वांट सम रेडीमेड बंदा जो उसको हम्म। ये भी आता हो वो भी आता हो, तीन प्रोफाइल का एक कॉम्बिनेशन ऐसा वाला। तो ऐसे केसेस में वो भी फ्रस्ट्रेट होते हैं, हम लोग भी फ्रस्ट्रेट होते हैं कि यार हमको नहीं मिल रहा है। एनी हाउ इट्स आवर ड्यूटी अल्टीमेटली कि राइट टू फाइंड और टू प्रोवाइड द राइट टैलेंट। तो राइट ये तो राइट हमारा राइट। टास्क है, बट फ्रॉम देयर एंड ये बिटन होता है ऐसे। हम्म। सो आई थिंक अगर एक एक समरी में इसको बताया जाए, तो मैं जैसे काम कर रहा हूँ या इस ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर जैसे मैं अलग अलग हायरिंग मैनेजर्स के साथ बात करता हूँ, तो जेडी आने के बाद वी ऑलवेज आस्क द हायरिंग कंपनीज कि इसमें मस्ट हैव स्किल सेट्स कौन से हैं और गुड टू हैव कौन से हैं। सो राइट। इन इन द 10 स्किल सेट, आपको तीन चार स्किल सेट ऐसे रखने पड़ेंगे जो यू आर ओके टू लेट गो, कि हाँ चलो है नहीं है, फाइन, एब्सोल्युटली राइट? एब्सोल्युटली। क्योंकि अगर आपको करेक्ट 10 on 10 चाहिए तो मिल भी जाएगा, चलो निकाल भी लेंगे, लेकिन फिर उसके लिए दे दो फिर सैलरी बहुत अच्छी, और उसमें भी करेक्ट। अनसर्टेनिटी वही है कि वो आपके पास टिकेगा या नहीं टिकेगा, राइट? सो इंस्टेड आउट ऑफ 10 यू टेक 5 to 6 मस्ट हैव क्राइटेरियाज, राइट? और उसके ऊपर दो दो से तीन जो क्राइटेरिया आपके उस पर ट्रेन किया जा सकता है या नहीं, ये भी आप देख सकते हो। एंड देन अगर एक दो नहीं एब्सोल्युटली है तो मे बी यू कैन स्टिल मेक अ डिसीजन, राइट? एंड दिस इज हाउ द इंडस्ट्री फंक्शंस, राइट? दिस इज हाउ द लीडरशिप राइट। फंक्शंस। लेकिन ये बहुत सारे लोगों को नहीं आता है यार, आपको भी पता रहेगा ये। and in fact like I got chance, means I'm lucky in that हम्म। जो मेरा स्टेक होल्डर है, मैं जिनके हम्म। साथ काम करता हूँ, लाइक दे आर प्रीटी मच अवेयर अबाउट द हम्म। मार्केट एज वेल, हम्म। और दे आर रियलिस्टिक। अगर फर्स्ट फर्स्ट गो में उनका रहता है एक्सपेक्टेशन, हम्म। अगर व्हेन यू गो विद द डेटा बोलो, या फिर आप हम्म। अगर उनको थोड़ा इंसाइट्स अगर देते हो, हम्म। तो इवन दे आर रेडी राइट। to compromise the skill sets even हम्म। anyhow।
उनको भी पता है एनी हाउ, वो स्किल्स में है ऑलरेडी, राइट, मार्केट में भी उनका पकड़ होता है, तो उनको आइडिया रहता है, बट दे जस्ट वांट टू एक्सप्लोर। और राइट। अगर अगर नहीं अगर मिलता है तो इवन जो है अवेलेबल, तो उसमें वो लोग यूटिलाइज कर लेते हैं एब्सोल्युटली, ऐसे। एब्सोल्युटली। लेकिन एज एन एचआर आपका बर्नआउट नहीं होता है यार? हाउ डू यू हैंडल दैट? इट्स ऑलवेज हाई प्रेशर सो जॉब। अनिल, प्रेशर कहाँ नहीं है। प्रीवियस प्रोजेक्ट विच आई वाज हैंडलिंग, तो वो काफी जमलिंग प्रोजेक्ट थे। मान के हम्म, चले जैसे साइबर सिक्योरिटी से दो तीन प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हम्म, टेस्टिंग से कुछ तीन प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और हम्म, उनका जो डेडलाइन और जो क्लैश हम्म, रिक्वायरमेंट का है, वो क्लैश हो रहा है, हम्म, राइट। तो उस वक्त वो थोड़ा काफी फ्रस्ट्रेटिंग था। अगर हम्म, आपके पास प्री स्क्रीनिंग क्वेश्चंस है, यू आर चेकिंग विद द कैंडिडेट्स, राइट, फिर आपका लेवल वन लेवल टू हो रहा है, और जो क्लाइंट है, जैसे कस्टमर बोल हम्म, लो, हम्म, सो कस्टमर अगर इंटरव्यू वगैरह ले रहा है, तो फिर दे आर रिजेक्टिंग द कैंडिडेट्स हम्म, ऐसे। तो उस वक्त वो काफी एक फ्रस्ट्रेटेड एक मोमेंट था, हम्म। कि यार इंडिया पैनल से तो अपना हो रहा है, बट आगे जा नहीं रहा है। तो देन राइट। फिर सब लोगों को बैठ के, फिर सब लोगों को रिकैलिब्रेट कर हम्म, जो लूप होल्स था वो फिर फाइंड आउट करके। बट एनी हाउ, जब वो लूप होल्स होता है, वो प्रोसेस भी काफी लेंदी होता है। हम्म, आपको बहुत स्ट्रांग वहां पे एक्ट करना होता है। हम्म। मीन्स यू आर चैलेंजिंग द सिस्टम। राइट, जो राइट, जेडी राइट। ऑलरेडी है, आप उसको चैलेंज कर रहे हो, तो दैट विल नॉट गोना इजी। यस, यस, यस। तो और हाँ, कॉर्पोरेट्स में तो फिर यार जो हायर कर रहे हैं उन्होंने तो बहुत चीजें सोच के वो करेक्ट, जेडी बनाया होता है। इट्स आई करेक्ट। नो इट्स वेरी टफ, इट्स वेरी टफ टू आस्क देम द क्वेश्चंस कि ये चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता है। फॉर श्योर। बट अभी है ना, मुझे करेक्ट। आई स्टिल रिमेम्बर अ टाइम ऑफ एमबीए, जब आप एमबीए करते करते थोड़े से कंफ्यूज थे, यू वांटेड टू गेट इनटू मार्केटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस। तो आप सडनली एचआर में कैसे आ गए यार? आपको किसी ने बोला नहीं कि यार हाँ, एचआर हाँ। बस लड़कियों के लिए अच्छा है? काफी टाइम ये हुआ था। इवन आई रिमेम्बर, मैंने पहले मार्केटिंग चूज किया था, हम्म, स्पेशलाइजेशन। हम्म। फिर उसके बाद फिर और भी मेरे डाउट्स थे, सब सब जगह मैंने प्रदक्षिणा मारी थी। और फिर उसके बाद फिर मैं एचआर में आया था ऐसे। ओके। और जब और इवन आई रिमेम्बर, जो मेरे क्लास का जो स्ट्रेंथ था, हम्म। सो देयर वो 55, ठीक है, ओके। टोटल स्ट्रेंथ। हाँ, उसमें से बस पांच लड़के थे, नहीं सॉरी, 56 टोटल। हाँ। एंड आउट ऑफ दैट पांच लड़के थे और 51 लड़कियां थी। सो आइला। उस वक्त भी, और उसमें से भी जो एक दो थे वो आते नहीं थे कॉलेज। सो हार्डली वन और टू, लाइक वी यूज टू अटेंड हाँ। लेक्चर्स। तो वो काफी एम्बैरेसिंग मोमेंट था, हम्म। कि आपका पूरा जो पहले का ग्रुप है वो सब मार्केटिंग फाइनेंस वो डिवीजन में, और यू आर ओनली सिटिंग इन दोज डोमेन, राइट। दैट डिवीजन। तो हम्म। वो उस वक्त काफी उसके पहले, जब व्हेन आई वाज फाइंडिंग वेदर इट किसमें इज गुड और नॉट, स्पेशलाइजेशन सो करना उस है? वक्त, हाँ। हाँ, 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 राइट। तो उस वक्त थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे वो बहुत 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 चैलेंज गया एक्चुअली, ये हम्म, डाइजेस्ट होने में फर्स्ट। और मेरे साइड में ऐसा था कि मेरे अंकल थे फैमिली हम्म, बैकग्राउंड में, हम्म, तो ही गाइडेड मी, ही एजुकेटेड दैट हम्म। टाइम। ये ऐसा नहीं है, इवन इन जो मैन्युफैक्चर होता है वहाँ पे एचआर प्रैक्टिसेस का जो मेल एम्प्लॉय रहते हैं, हम्म। राइट, उनका काफी एक अलग रोल होता है, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट द साइट्स एंड ऑल। तो राइट। तब फिर धीरे धीरे मुझे थोड़ा आइडिया आया, हम्म, और I chose that specialization. And in हम्म। fact, I started very quickly with Majestic Landmark, जो अच्छा। रियल एस्टेट था। हम्म, वहां पर फिर मुझे फिर कनेक्ट हुआ कि हाँ, जो एज ए बीइंग जो मेल एचआर है, हम्म। राइट, उनका एक अलग इम्पैक्ट होता है, जैसे राइट। ये ब्लू ब्लू कॉलर के जो ये प्रोफाइल के जो कुछ लोग हैं, हम्म, सो दे हेजिटेट टू इंटरेक्ट विद हम्म। यू आर गेटिंग राइट। राइट, तो राइट। उस वक्त हाँ, सो उस वक्त जो उनके क्वेरीज है वो सॉल्व वगैरह नहीं होते हैं, बहुत से हम्म, इश्यूज रहते हैं ऐसे वक्त। एंड देन पैरेलली एट दैट टाइम, लाइक मैंने आईएलएस से जो लेबर लॉ है, वो हम्म। उसके लिए एनरोल किया था। ओ। बट एनी हाउ, पाथ चेंज, आईटी में मुझे एक्सपोजर मिल गया एंड माय करियर स्टार्टेड इन दैट। हाँ, अच्छा। अब ये इंडस्ट्री में आने के बाद भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, तो जो जैसे मैंने सुना था, जैसे हम लोग सुनते थे, 100 में से हार्डली यू विल गेट 5 और 10 मील रेशो। तो हम्म। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर 30% 40% क्राउड मेल कैंडिडेट्स का है, ओके। मेल एम्प्लॉय का है। हम्म, सो हम्म,
मतलब ऐसा नहीं है आज की डेट में, इफ आई टॉक अबाउट, तो हर फील्ड में यू विल गेट सेम डाइवर्सिटी, यस यस, अभी एंड तो दैट्स व्हाट। इंक्लूजन और हाँ, एक्सेप्टेंस आ गया है, क्योंकि अब अभी तो आ गया है, राइट। या बट मैं करेक्ट। जब भी याद करता हूँ, बिकॉज मैंने तो कभी एचआर किया नहीं, मैंने तो प्लान भी नहीं किया था। आई वॉज वेरी श्योर कि मुझे इंटरनेशनल बिजनेस करना है। बट वाइल थिंकिंग अबाउट इट, आई वॉज ऑल्सो कंसर्न अबाउट प्लेसमेंट, एंड आई हैव डन मार्केटिंग अर्लियर। मैंने मेरे ग्रेजुएशन में किया है, मैंने जॉब्स भी कर लिए थे। तो मेरे लिए ज्यादा करेक्ट। डिफिकल्ट नहीं था करेक्ट। टू डू सेल्स और मे बी टू गेट इन टू द करेक्ट। मार्केटिंग थिंग। But when I, spoke करेक्ट। to the professors that we had, they then told me कि you should go for marketing as a major priority first, और उसके बाद हम्म। secondary तू आई भी ले सकता है। And I think we करेक्ट। both करेक्ट। are really glad and grateful कि हमें अच्छे faculties मिले थे, एग्जैक्टली। है ना? एंड इनफैक्ट आज से 10-12 साल पहले जाते हैं, हम्म जो स्पेशलाइजेशन हम लोग चूज करते हैं उस वक्त, वी हम्म सिंपली कैटेगराइज दो स्पेशलाइजेशंस लाइक हम्म मार्केटिंग, ऑपरेशन, एचआर, फाइनेंस, राइट, इन सिंपली दैट वे. बट right, व्हेन यू एंटर इन दो स्पेशलाइजेशंस, सो देन यू विल फील you're entering in the ocean. absolutely. जो कि वो खत्म हो ही नहीं रहा है, वो चल ही रहा है. हम्म अब इफ आई टॉक अबाउट द मार्केटिंग, मार्केटिंग में यू विल गेट ए नंबर ऑफ थिंग्स. right. सेल्स हो गया, सेल्स एक अलग सेगमेंट हो गया. उसके बाद प्री सेल्स हो गया, जो आपको जाना कहीं नहीं है, एक जगह बैठ के आपको लीड जनरेट करने हैं. ये भी हम्म काफी इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है. देन ब्रांडिंग, मल्टीमीडिया मार्केटिंग, होर्डिंग. सो देन ये सीआरएम हो गया, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव. मतलब डिफरेंट प्रोफाइल. इनफैक्ट इन इफ आई टॉक अबाउट इन एचआर, तो एचआर में भी काफी है. जैसे जर्नलिस्ट का प्रोफाइल हो गया, हम्म ऑन बोर्डिंग स्पेशलिस्ट हो गए, हम्म एक लर्निंग एंड डेवलपमेंट आता है हम्म डिपार्टमेंट्स इन टियर 1 2 ऑर्गेनाइजेशंस में. सो दे प्रमोट द सर्टिफिकेशंस, द कोर्सेज फॉर हम्म कैंडिडेट्स, फॉर एम्प्लॉयज, देयर एम्प्लॉयज, राइट. हम्म एक एल&डी डिपार्टमेंट है एचआर में right. ही. एचआर एनालिटिक्स है, रिपोर्टिंग हम्म है. तो मतलब काफी है. और एनी हाउ जॉब सीकर को कोई मैटर नहीं करता वेदर इट इज मेल और फीमेल. right right सो right. आप उसको हेल्प कर रहे हो, तो हाँ, दैट इज द गेम, दैट इज द गेम। बट आपने अभी राइट. जो एचआर के बारे में बोला ना, recently, like in the last 6 months, I was reading more about it. Since the AI, the screening, maybe AI shortlisting is happening on a larger level at different organization. तो अभी आइडेंटिकल सीरीज बहुत ज्यादा आ जाते हैं, राइट? बिकॉज पीपल आर नाउ ऑल्सो स्मार्ट। तो वो एक ही फॉर्मेट बनाते हैं और एक ही तरीके का सीवी आ जाता है, एक ही कंटेंट होता है। तो समझेगा कैसे कि कौन सा कैंडिडेट, कौन सा टैलेंट, क्या सही रहेगा अपने लिए? तो अभी ना, आई थिंक ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो नाउ लुकिंग फॉर एचआर्स हु आर स्मार्ट, हु आर टेक सेवी, एंड कैन इमिडिएटली अंडरस्टैंड कि ये सीवी एआई वाला है या नहीं है, राइट? जब भी शॉर्टलिस्ट होके राइट. उनके सामने आता है। सो दे, आई मीन एचआर में भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अभी मैंडेट होना शुरू हो जाएगा, यस. राइट? यस. यस. दैट यस. इनफैक्ट स्टार्टेड. कुछ हम्म कोर्सेज भी आ गए एचआर में, लाइक हम्म चैट जीपीटी फॉर एचआर हो गया, हाँ एआई लेवरेज. सो ये चीज, और यस, आपने सही कॉल आउट किया है ये चीज. इवन आज अभी जो ये जो इरा है, इट्स नॉट ओनली एआई. हम्म, अभी एआई वर्सेस एआई हुआ है. हाँ हाँ पहले हाँ, ऐसा होता था, हाँ, टेक्नोलॉजी वर्सेस ह्यूमन. ह्यूमंस, बट अब हाँ ऐसा हो रहा है कि हाँ, अगर हम लोग प्रॉम्प्ट अगर दे रहे हैं जो एटीएस पे, हाँ, तो कैंडिडेट भी प्रॉम्प्ट यूज करके वैसा ही प्रोफाइल बना रहा है. एग्जैक्टली, मुझे इवन भी जस्ट सेड इवन दैट, इवन आई हैव सीन, या इन माय करंट ऑर्गेनाइजेशन देयर वर कपल ऑफ सिमिलर ओपनिंग्स, और लेकिन उसके कुछ जो शेड्स थे वो अलग थे. राइट कहाँ पे कुछ स्किल्स एड ऑन थी. राइट, तो एंड द जेडी वाज कम्प्लीटली डिफरेंट. हाँ, हम्म ठीक है. तो जैसे हमने कुछ नोटिस किया है, कुछ ऑब्जर्वेशंस हमारे रहे हैं. हम्म कैंडिडेट ऐसा करते थे, जो जेडी है, हम्म मान के चलिए कि जैसे सीरियल नंबर A to 10 में जितने ओपन रोल है, हम्म वो हर सेगमेंट के हिसाब से अपना रिज्यूमे चेंज करते थे एब्सोल्युटली, एज पर जेडी, राइट. हम्म सो इट्स वॉर बिटवीन एआई वर्सेस एआई. हम यस लोग यहाँ यस पे यस। प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, वो भी प्रॉम्प्ट से ही मैं आपको प्रोफाइल बना रहे हैं. आपको और एंड एक बढ़िया चीज बताता हूँ आगे आपका होने के बाद, प्लीज प्लीज बोलिए। या एंड इवन अभी इंडस्ट्री को भी ऐसा जरूरत है स्मार्ट एचआर का, जो आपका प्रोफाइल वैसे पकड़े, जो एआई बेस्ड प्रोफाइल है. हाँ इवन इफ आई लाइक व्हेन आई गो एंड आई स्पीक विद स्टेक होल्डर्स, सो इवन दे हैव मोर कंसर्न्स. यार, ये पूरा जो है, ये हमारा पूरा जेडी छापा हुआ है. राइट, तो उस वक्त भी कुछ ट्रिक्स होते हैं, जैसे टू चेक विद देम हम्म वेदर दे हैव दोज एक्सपीरियंस और नॉट, दे आर इनटू इट और नॉट. सो
विथ हो प्री जाता है। स्क्रीनिंग और वाइल इंटरेक्ट विद देम, राइट, तो ये यस आपका यस यस। सॉल्व होगा। अदरवाइज ओनली अगर आप अगर स्क्रीन करोगे या जज करोगे ऐसे, तो वो कभी सॉल्व नहीं होगा। इसके आगे बिकॉज की इन भी एक रेज्यूमे स्टेप है ना, इनफैक्ट इसके इसके आगे की भी स्टेप है, जो जो स्टेप ये है कि स्क्रीनिंग तो अभी आपने बताया जो डिफरेंस है कि स्मार्टली वो करना ही पड़ेगा, लेकिन जब कॉल्स करेक्ट। जाते हैं ना, राइट, तो आईवीआर या हम्म। एआई क्लोन वाले कॉल्स जाते हैं, तो कैंडिडेट्स ने भी, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपने एआई क्लोन और एआई एजेंट्स बना दिए हैं हु विल इंटरेक्ट विद एग्जैक्टली, ईच अदर। एग्जैक्टली। सो सी व्हेन टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी अगर आता है मार्केट में, सो देन क्वेश्चन अगर आएगा तो सोल्यूशन भी वैसा आएगा, या सोल्यूशन अगर आएगा तो क्वेश्चन भी वैसा बनेगा। राइट अगर राइट हम राइट। लोग पहले का अगर डिकेड अगर देखते हैं, जो कुछ पुरानी मूवी होती थी, हम्म उस वक्त जो ये पायरेट्स या फिर हाइस्ट वगैरह जो हुआ करते थे, हम्म। ये फिजिकल हुआ करते थे। बट अगर देखो, अभी हम लोग बात करते हैं पिछले 7-8 साल से डिजिटल एंड ऑल डिजिटल दिस थिंग्स, अरे, राइट। साइबर तो स्कैम, हाँ, ऑल दिस हाँ, थिंग्स, तो या ये भी हो रहा है विदाउट एनी फिजिकल। राइट राइट राइट। सो ये तो जनरेट होगा ही। वो तो वॉर चलती रहेगी। अ, सो सर, यू रियली सेड इट राइट कि अगर सॉल्यूशन है तो प्रॉब्लम है, इसके लिए तो सॉल्यूशन है, लेकिन उस सॉल्यूशन का ज्यादा डिसएडवांटेज भी नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक ह्यूमंस नाउ डेज आर वेरी ईगर टू रिप्लेस ह्यूमंस ओनली, एआई लाके। बट ठीक है, अभी ये तो अनदर डिस्कशन हो जाएगा, अपना पॉइंट ऑफ डिस्कशन, वो हम लोग कभी ऑफलाइन भी बात करेंगे। बट ऑन दिस नोट आई रियली वांट टू थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा हमें आज एनलाइटन किया है। ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों को इम्पोर्टेंट है सुनना, एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट भी करेंगे। तो आपका लिंक्डइन यूआरएल हम हमारे हमारे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे विथ योर परमिशन। एंड ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू अगेन थैंक यू फॉर दिस टाइम, एंड इट वाज रियली वंडरफुल टू नो यू सर। सेम सेम, लाइकवाइज प्रणील, थैंक यू। या, थैंक यू। सो हियर वी आर, आज हमारे साथ थे संकेत सर, जिन्होंने हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। आई एम श्योर कि आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। प्लीज़ रेफर टू हिज लिंक्डइन यूआरएल गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। अगर जॉब के बारे में पूछना है, आप उनको पूछ सकते हो, नेटवर्क कर सकते हो, या कोई हायरिंग कंपनीज है वो भी उनके साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। बट प्रायर टू दैट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ये एपिसोड ऐसे लोगों के साथ शेयर करना जिनको एचआर में उनकी जर्नी शुरू करनी है, या जॉब में एग्जैक्टली क्या क्या वो कर सकते हैं, या फिर जो कंपनीज हायर करने में थोड़ा सा हिचकिचा रही है, ऐसे सब लोगों के लिए ये हमारा कंटेंट था। और यही मैं वापस बोलूंगा कि आपका सपोर्ट हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट है। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर इट विद समवन, लाइक दिस पर्टिकुलर एपिसोड, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।